Hey everyone, I Sarfraz Ahmed. I am here for teaching you a new book, basically a new chapter of new book, the class 11 physics, chapter number 1. Before begin to start our session, I want to say something about the session. The first thing is that this book is the summarizations of the NCERT book of the class 11 physics. Okay, the person, there are two kinds of the students are there. The first is who are the very go into the depth and want to find out the all the details. If for those students this summarizations is very little helpful, because it is not the full basically it is as it is mentioned that it is the summarization of the book. Okay, summarization of the chapters. So it is just, it will give the basic the structure. Okay, how student the ideal students are there. The first, the students who structure the first overview, the bird's view of the chapters, and then the dive inside the chapter. Although this that is the physical world, the first chapter is not so very important, but from the perspective of the new terms, what is science, what is physics, of their approach, what is the classical physics, what are the quantums, what is the quantum physics, and what are the different laws of nature, their orders, and all things. These are all the basic things, and not much more than that. And in the examination, it just comes of the 1 marks or 2 marks, or that its weightage is very low. Okay, so the second thing is that this PDF is not constructed by me. This PDF is downloaded from the hslive.com something else. So the person, the students who can want to very want to take this PDF format can download from the hslive.com, which is just written as, actually it is not .com but it is .in. Okay, it is one of the second thing. Okay, the third thing is that it is the question answer format. It is not it is the just like that of the guide format, the questions and then answer. I will go through all the terms, all the important terms of that chapter, and then the student who is very sincere can read book after this session. It will be very helpful. Okay, it will be very helpful for those students who hesitate of the first reading of the of the book. Okay, so my last word is that, from the preface point of view, is that there is not alternative of reading the mother book of your your own syllabus book. Okay, there is no alternative. Although we are here for supporting you. The person who has some, even a single doubt, can write in the comment box, and I will reply as soon as possible. So let's begin. And I am warm welcomes to all my YouTube viewers. And now this is after a very long period of time, I am here for teaching you the physics, and sorry for that. And now we are going to start, and we will
definitely try my best to adhere with it with sincere. So let's begin. The physical world. Then the first thing is that what is science? Science is a systematic attempt to understand the natural phenomena. What is the natural phenomena? The natural phenomena is what is going on. What we see, how the rain fall happen, and why there is snow, and why the sun rise and the sunset, why there is too much stars are there, and these everything which we observe in our daily life. These all are the natural phenomena. So if we find out if we understand something that is the natural phenomena with a systematic attempt. Systematic attempt is very important because it is not happen arbitrarily. So systematic attempt means there is some procedure for the first step, second step, third step, and so on. There is some procedure. After that, there is the second, third, fourth, and fifth, and then the last, the conclusion of that experiment. So the science is the systematic attempt to understand what we are going to understand, the natural phenomena. Okay, is it correct? Whatever we observe by our systematic attempt, is it correct or not? It may be wrong, but now as much as possible we by going through the all the steps and by observation, by the experiment, by the reasoning, and by the mathematical modeling, and then after that we see that this phenomena and this understanding good or bad, we effort our best. Okay, तो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट्स हम लोग लेते हैं किसी भी फेनोमेना को समझने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके. तो ये था साइंस. ओके, तो हम लोग का मेथड क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है? सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा. तो ये सब जो है जितनी सारी चीज़ें होती है वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं. सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग जो है इसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे माने या तो इतने कम टाइम में हो रहे हैं 10⁻⁻28 सेकेंड से पहले कुछ हो जा रहे हैं, तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे. ओके, तो उसके बाद जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग हम लोग लगाते हैं. तो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है इसका मतलब ऐसा होगा. जैसे कहीं पर आग जल रही है तो हमारा रीजनिंग यही कह रहा है कि वहाँ पर वहाँ कहीं से धुआं निकल रहा है, तो हमारी रीजनिंग यही कह रही है कि वहाँ पर हो सकता है आग जल रहा हो. अब उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग में उसका अप्लाई कर देते हैं. इसका मतलब हम लोग या तो ग्राफ के थ्रू उसका रिलेशन दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग जो है कोई वेरिएशन के दिखा सकते हैं, डायरेक्टली एंड इनवर्सली रिलेशन के तौर पर दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग कोई इक्वेशन बन सकता है, या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं. डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह आ सकते हैं. बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे हैं जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके मालूम कर सकते हैं कि ये वही फेनोमेना हो रहा है. जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो कोई भी फेनोमेना हो रहा होता है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन वो पार्टिकुलर आ रहा होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. उसी तरह हर एक फेनोमेना के लिए अलग अलग एक इक्वेशन बना हुआ है जिससे हम लोग मालूम करते हैं. तो उस मैथमेटिकल मॉडलिंग में आ सकता है, सिमिलरिटीज कुछ आ सकती है. तो हम लोग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड है. उसके बाद जो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग जो एजम्पशन कर रहे होते हैं, जिससे एजम्पशन को करके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो एजम्पशन या तो उसका वेरिफिकेशन हो जाता है या उसका फॉल्सिफिकेशन हो जाता है. तो ये रहते हैं हमारे जो है ये साइंटिफिक मेथड्स. नाउ हम लोग आते हैं फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स क्या बताता है? फिजिक्स बताता है हम लोग बेसिक लॉज ऑफ नेचर के बारे में बताता है, और उसके असरात जो हो रहे हैं अलग अलग फिनोमिना पर, या उसके जो नज़ायर दिखे जा रहे हैं. तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर. तो लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए
हम लोग जो है जो स्टडी करते हैं ये फिजिक्स है, वो फिजिक्स कहलाता है। उसके बाद जो है ये स्टडी ऑफ द फिजिक्स है, जो क्या करता है लॉज ऑफ नेचर पे बेस्ड है और उसके मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड है, और ये मैनिफेस्टेशन कैसे अलग अलग फिनोमेना में हो रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो फिजिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, सॉरी ग्रीक वर्ड से आया है, सो आई एम वेरी सॉरी। तो ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है नेचर। अच्छा, यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनि मतलब सिंगल, एंड फिकेशन मतलब एक प्रोसेस जिसको सिंगल करने की कोशिश की जाती है। हम लोग को मालूम है कि फिजिक्स में बहुत सारे फेनोमेना हो रहे हैं, और उन फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है अलग अलग लॉज लेकर आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट का जो है फ्लड हो गया है। तो अभी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम एक फ्यू कॉन्सेप्ट में तमाम कॉन्सेप्ट ला दें, ऐसे के दरिया को कुएं में बंद कर दें। तो और कुछ ही फ्यू लॉज होंगे जो लगभग तमाम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस प्रोसेस को, इस जो है अप्रोच को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। और रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म एक मेथड है जिससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टी से बिगर या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के प्रॉपर्टी को हम लोग निकालते हैं या समझते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे मेटियोराइट्स है, तो ये मीटियोर्स हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मेटियोर्स कभी कभी धरती पर चले आते हैं, तो हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे समझते हैं कि अर्थ कैसे बना हुआ है। तो एक छोटी सी चीज़ लेकर के हम बड़ी चीज़ पर हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये है रिडक्शनिज्म, कि एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, उसके प्रॉपर्टी से हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिराइव कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ये बहुत ज़्यादा हद तक ये अप्रोच अपनाया गया है अर्थ के बहुत सारे लेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर हम लोग सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बाहर यूनिवर्स एंड गैलेक्सी को समझने के लिए ये प्रोसेस अपनाया गया है। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 में चले आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये बताएगा व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स के कितने डोमेन्स हैं, मतलब कि एक बड़े बल्कि टाइप्स में बांट लेते हैं कि फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक ऐसा फिजिक्स हम करते हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं 9 में, 7 में, 6 में, वो तमाम के तमाम जो है क्लासिकल फिजिक्स है। वो क्लासिकल फिजिक्स इसलिए थे क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को बता रहे थे, माने बड़े बड़े फिनोमेना को बता रहे थे, जैसे मैकेनिक्स हुआ। उसके बाद मैकेनिक्स एक छोटा सा इसमें बात करें तो मैकेनिक्स ये होता है कि किसी चीज़ के फ्लो को दिखा रहा है, जैसे कि कोई दौड़ रहा है या फिर पानी फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है, एवरीथिंग। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इस यहाँ पे डिस्कस जब पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये क्लासिकल फिजिक्स जो डील करता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों पर डील करता है। उसके बाद अगर छोटी चीज़ पर डील करें, या इसका मतलब एटॉमिक लेवल पे डील करें, मोलिकुलर लेवल पे डील करें, या फिर न्यूक्लियर लेवल पे डील करें, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक, ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स। यहाँ पर जो भी चीज़ हो रहा है वो क्वांटम फिजिक्स पर, उसको बोलेंगे ये क्वांटम फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ नाउ मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन विद द क्लासिकल फिजिक्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चले आए, बट द एक्सप्लेन ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, मतलब इसका रेंज क्या है, कहाँ तक हम लोग फिजिक्स का इस्तेमाल करके किस नतीजे पर पहुँच सकते हैं। इसका जाहिर सी बात है कि कोई लेंथ होगा जिस लेंथ पर फिजिक्स के लॉज लगा करके वो रेंज के अंदर ही ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं। कोई मास होगा, कोई टाइम होगा। तो सबसे पहले लेंथ समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियस ऑफ द साइज से साइज ऑफ द यूनिवर्स तक, यानी 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻26 मीटर तक की रेंज या तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी के रेंज में हमारा आ सकता है, या फिर 10⁻⁻15 मीटर के नीचे हमारा अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल्स नहीं बना है जिससे वो चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। और अगर टाइम के बारे में जानकारी हासिल करें तो 10⁻22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड के बीच में ही अगर कोई फिनोमेना हो रहा होता है तो हमारा सेंसिटिव टूल्स जो हम लोगों ने बना रखा है वो काम करता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये इतने सारे फिनोमेना जितने भी होते हैं अभी तक के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इतने ही रेंज के अंदर ये फिनोमेना हो रहे होते हैं।
व्हाट इज द मास, मास का टर्म जो है इलेक्ट्रॉन के मास से छोटा क्या ही होगा, और उसके बाद जो है यूनिवर्स के साइज, इन दोनों के बीच का रेंज, मैंने इन दोनों के बीच में इन रेंज में जो भी आ रहे हैं वो सब स्कोप ऑफ द फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स के थ्रू उस चीज़ को हम लोग या तो माप सकते हैं या फिर वो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में समझेंगे, उसका ऑर्डर समझेंगे। तो हम लोग जो है जानते हैं कि अगर पूरे नेचर को खंगाल लें, पूरे यूनिवर्स को देख लें, पूरे मार्स पर चले जाएं, जुपिटर पर चले जाएं और पूरा सोलर सिस्टम से बाहर गैलेक्सीज और पूरा यूनिवर्स को छान मारे, तो हम लोग को 4 टाइप से फोर्सेस मिलते हैं, लेकिन फंडामेंटल में होता है। इसके अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो ये मत बोलना कि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको स्ट्रेंथ में कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो हम लोग जो है जब स्ट्रेंथ मालूम करते हैं तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, उस रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम उसको निकाल रहे होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बेस बनाकर तमाम फोर्सेस का हम लोग पावर निकालने वाले हैं, कितना स्ट्रेंथ है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसी का कैलकुलेशन इसी के साथ कर रहे हैं तो 1 होगा रिलेटिव। तो इसका रेंज क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर कोई भी सामान चीज, कोई भी चीज़ रखा हुआ है, यहाँ पर कलम है, डायरी है, पेन है, बुक है, इन दोनों के बीच में दूरी जितनी भी हो, इन दोनों में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। न्यूक्लियर फोर्स देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻32, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स इतना टाइम्स मोर जो है पावरफुल है। लेकिन इसका रेंज कितना, कितने छोटे छोटे कितनी दूरी पर रहेगा, तो ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट फॉर 10⁻⁻²। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग देखेंगे 10⁻36, उससे ज़्यादा भी पावरफुल है। और लेकिन रेंज क्या है, रेंज है काफ़ी हाई, मतलब बहुत दूर तक रहे तब भी ये फोर्स एक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोर्स है, स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ कोई भी फोर्स अभी तक पाया नहीं गया है। और रेंज क्या है, 10⁻⁻15, मतलब ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, उसके बाद हर एक के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। वैसे तो हम लोगों को पूरा पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो भी रखी हुई हैं, या फिर एक बड़े से बड़े तौर पर देखा जाए कि एक सन है, सन की और अर्थ है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडीज के बीच में होता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन एक फार्मूला याद रखना, G m1m2/r²। m1 m2 दो मास के बीच, m1 m2 दो मास है, दो बॉडी, इसका मास m1 m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये फार्मूला सेट होता है उसके फार्मूला निकालने में। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है MCQ बनाकर, ऑप्शन देकर कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और साथ में ये लॉन्ग रेंज, हम लोगों ने देखा इन्फिनिटी तक, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। और उसके बाद सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम लोगों ने देखा कि जो है रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, और ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहा होता है। तो बीटा अगर कहीं से बाहर निकलता है, न्यूक्लियर से बाहर निकलता है, तो साथ में जो है ये असल में ये वो मास निकलता है जो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। साथ में एंटी न्यूट्रॉनों भी बाहर आता है जो कि अनचार्ज पार्टिकल है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, क्यों, ये शॉर्ट रेंज भी है, और चूंकि न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहा है और वीक हो रहा है, तो इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 चार्जेस के बीच में होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच में हो रहा था, ये 2 चार्जेस के बीच में होता है। अब 2 चार्ज हैं जिसका वैल्यू Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये फार्मूला सेट हो जाएगा। फार्मूला निकालने में हम लोग क्लास 12 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बहुत अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। इस चीज़ को याद रखना, छोटा छोटा टर्म्स याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव भी होगा। नाउ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स माने जो न्यूक्लियॉन्स के बीच होगा। न्यूक्लियॉन्स कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या, ये तो अनचार्ज पार्टिकल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
ये अनचार्ज के बीच में भी होता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी। इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? शॉर्टेज फोर्स हम लोगों ने देखा, शॉर्टेज फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे नेचर में। एंड नाउ कुछ कंजर्वेशन ऑफ लॉज हैं। कंजर्वेशन ऑफ लॉ मतलब कि उसको ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, वो हमेशा किसी फेनोमेना के पहले और किसी फेनोमेना के बाद वो चीज़ें फिक्स रहती हैं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम में लॉ ऑफ नेचर फिक्स होता है, जो है एनर्जी जो है फिक्स होता है। तो वो चूँकि प्रॉपर्टी है ये जो एनर्जी का, इस फेनोमेना से पहले और किसी फेनोमेना के बाद किसी एक सिस्टम में एनर्जी फिक्स हो जाता है, चार्ज फिक्स होगा, लीनियर मोमेंटम फिक्स होगा, एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। तो इस हिसाब से अलग अलग लॉज दिए हुए हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब कि किसी फेनोमेना से पहले और बाद में किसी एक सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। अगर लीनियर मोमेंटम फिक्स कर रहे हैं या होगा तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि एट ए टाइम ये तमाम चीज़ें एक साथ हो रही होती है। लेकिन किसी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक या दो चीज़ें अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल सकता है। ज़रूरत पड़ने पर चारों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा जो है हमारा आज का जो है फुल सेशन, जो कि चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड पर बेस्ड था। और मैं इसको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको जो है एक बार दो बार जो है रिवाइज ज़रूर करें और ओरिजिनल बुक जो है आप ज़रूर पढ़ें। और आगे जो भी आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 वो पढ़ने के बाद जो है ज़रूर मैं जो है ये ज़रूर एश्योर करता हूँ कि आप लोगों का जो है बूस्ट होगा, ये आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए और फिर मैं जो है यकीनन आपका ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।